Good morning, students. A very happy Bhai Dush to all of you. Today we are going to start circles part 1. Already you know what are circular regions. Let us recall all these things once again. Can you tell about the shape of these figures? Of course, the end of all these figures is a circular path. So all these shapes are circular in shape. All these are circular in shape. Let us understand it in an activity. Take a compass and fit a pencil in it. Put its pointed leg on a point on a sheet of a paper. Keeping the pointed leg on the same point, rotate the other leg through one revolution. You know this figure is a circle. All of you know how to make a circle using a compass. This activity is suggesting using a compass to make a circle on your sheet. The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. This is a circle. It is the collection of all the points on a plane. In a plane, we have a collection of points which are at a fixed distance from a fixed point. Here, fixed point is the center, and all the distances which are at fixed distance, they all form the boundary of the circle. The fixed point is called the center of the circle. Here, O is the center, and the fixed distance is called the radius of the circle. Here, OP is the radius. We can draw many radius on the circle, and they all are at the same distance from the center. So we say that the radius of a circle is fixed. In any circle, if this radius is 3 centimeter, it will be same everywhere. That is why it is circular in shape. If you take any two points P and Q on a circle, then the line segment PQ is called a chord of the circle. Here you can see these 2 points are on the circle, and the line segment joining these 2 points is called the chord of this circle, and the chord which passes through the center. AB is also chord. These are any 2 points on the circle, but it is passing through the center. That is why it is given a special name, and it is called the diameter of the circle. So diameter is also a chord, but it is the longest chord. It is passing through the center. In the given figure, PQ is the chord of the circle and AB is the radius of the circle. Note, diameter is the longest chord. This you have to note that diameter is the longest chord, and diameter is equal to the 2 times of the radius. Whatever radius is given to you, diameter will be double of it. If you say that radius is 3 centimeter, the diameter will be 6 centimeter. If you say that radius is 4 centimeter, the diameter will be 8. So, whatever is the dimension of radius, diameter will always be the double of the radius, and diameter is the longest chord in a circle. If we take a piece of a paper between any 2 points, a piece of a circle between any 2 points is called an arc. Like here, P and Q are any 2 points on the circle, and the points which are all lying in between from P to Q, this piece of the circle is called the arc. Okay, so we can see where we have 2 pieces. This piece is smaller, this is smaller arc, and this piece is bigger, it is called the bigger arc. So we have a minor arc and we have a major arc. Small को हम बोलेंगे minor arc and big को हम बोलेंगे major arc. ओके तो आर्क को दिखाने के लिए आपको ऐसे PQ लिखना है और उसके पर ऐसे एक सिंबल बनाना है. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स एन आर्क. Okay, how to differentiate between minor arc and major arc? We can go from P to Q this way, and we can also go this way. So if we put any point in between here, like we have put R over here, then PRQ is the major arc, and this PQ is the minor arc. The region between a chord and the either of its arc is called a segment of the circle. Here P, Q are any 2 points on the circle, then this is called the chord of a circle. The region between the chord and the arc is called the minor segment. Is called a segment. Here it is the minor segment, and this piece is a major segment. It is also the portion between the chord and the arc. कॉर्ड और आर्क के बीच की जगह को हम सेगमेंट बोलते हैं. तो इस तरीके से ये छोटा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो अ सेगमेंट बिकॉज ये आप कॉर्ड और आर्क के बीच में ले रहे हो. जब आर्क आपका मेजर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सो सेगमेंट विल बी मेजर सेगमेंट.
ओके, सिमिलरली व्हेन वी टेक द रीजन बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियस के बीच में और आर्क के बीच की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये भी आपका माइनर सेक्टर जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, एंड वाइट पोर्शन से मेजर सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आर्क बड़ी है आप देख रहे हो और ये दो रेडियस के बीच में है। ओके, सो वी हैव लर्न सेगमेंट्स एंड वी हैव लर्न सेक्टर ऑल्सो। रेडियस डायमीटर आपको पता ही थे, आर्क यू नो, अब आपने सेगमेंट एंड सेक्टर्स को लर्न किया है। नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, शो अ रेडियस डायमीटर एंड कॉर्ड ऑन द सर्कल एंड नेम इट। आप ये देखिए कि सर्कल 4 सेंटीमीटर का हम कैसे बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करके आपको 4 तक का अपना कंपास ओपन करना है। ठीक है, इससे 4 सेंटीमीटर का आर्क बनेगा। जब आपको 5 सेंटीमीटर बनाना है तो आप 0 से लेके आप कहाँ तक ओपन करेंगे, उसको 5 तक ओपन करेंगे। 6 का बनाना है तो 6 सेंटीमीटर तक ओपन होगा। ओके, पॉइंटेड पोर्शन आपका एक जगह रहेगा और पेंसिल वाला पोर्शन आपका 4 पे, एक बार 5 पे, एक बार 6 पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, इतना ओपन करके आपको आर्क सर्कल ड्रॉ करना है। 5 सेंटीमीटर के लिए आप इतना ओपन करोगे 0 से लेके 5 तक, और 6 सेंटीमीटर के लिए 0 से लेके 6 तक। अच्छा, यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का। ओपी आपका रेडियस है, ब्लू कलर से जो हमने दिखाया। रेडियस हम कहीं भी बना सकते हैं, आप देख रहे हो, हम इसको ऐसे करके इधर भी बना सकते थे, हम इसको मूव कर सकते हैं, हम इसको कहीं पर भी बना सकते हैं, जैसा भी हम चाहें हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये हमने इधर भी बना दिया, हम इसको मूव करते जाएंगे, आपका देख रहे हो ये सारा इसका रेडियस हो गया। ठीक है, इस तरीके से सब पोर्शन आपके रेडियस है। ओके, इसी तरीके से हमने ड्रॉ किया एक डायमीटर, ये डायमीटर है ए बी बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। आप इसको और तरीके से भी डायमीटर को आप देख रहे हो कि अगर हम डायमीटर को किसी और जगह बनाना चाहें वहाँ भी बना सकते। ये आपका कॉर्ड है, कॉर्ड ऐसे भी बन सकता है, कॉर्ड आपका ऐसे भी बन सकता है, ग्रीन कलर से जो हमने दिखाया। हम किसी और शेप में भी उसको किसी और पोजीशन पे भी हम ले सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कॉर्ड को, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट पोजीशंस में आप कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर हमने सी डी कॉर्ड बनाया है, सी डी इज द कॉर्ड। इसी तरह जो डायमीटर है आपका, आपने देखा सेंटर से जाना चाहिए, ये भी बन सकता है। ठीक है, सेंटर से जाती हुई आपकी ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी आपका बन सकता है डायमीटर। ठीक है, इस तरीके से भी बन सकता है। आप कहीं पर भी जो सेंटर से जाती हुई लाइन है वो आपकी डायमीटर होती है। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पर कैसे दिखाया, वी हैव शोन इट बाय यूजिंग ए बी, ए ओ बी। सो आप देख रहे हो ए बी इज़ द डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ओ पी इज़ द रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इज़ द कॉर्ड। वी कैन ड्रॉ इट एनीवेयर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें आर्क बनाना है, सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर का, और आपको सेगमेंट्स दिखाने। ए बी पॉइंट लेना है आपको, ए और बी। देखिए ये क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेक एनी 2 पॉइंट्स ए बी। तो जो पॉइंट्स उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया आपको वही लेने होंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई पॉइंट्स नहीं दिए थे, सो यू कुड टेक पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते थे। यहाँ पर फिक्स्ड है, ए बी लेंगे और इसी से मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट्स लेंगे एम एन एन और इसी से आप मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने ए बी पॉइंट्स लिए ग्रीन लाइन से, और ये जो आप देख रहे हो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में ये आपका माइनर सेगमेंट हुआ, और आप ये देख रहे हो ये पोर्शन आपका सारा मेजर सेगमेंट होगा, ग्रीन लाइन कॉर्ड के बीच में एंड बिगर आर्क के बीच में। हमने रेडियस भी दिखा दिया टू स्पेसिफाई कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल है। ए एम बी आपका मेजर सेगमेंट है, ए एम बी, एंड ए एल बी इज़ द माइनर सेगमेंट। इसी तरीके से हमने एम और एन पॉइंट्स लिए और 2 रेडियस बना दिए 6 सेंटीमीटर के। ए पी एन ओ ये वाला पोर्शन जो आपका है ये आपका माइनर सेगमेंट है, ओ एम पी एन, ओ एम पी एन इज़ द माइनर सेक्टर, दिस इज़ कॉल्ड सेक्टर। 2 रेडियस और आर्क के बीच में दिस इज़ कॉल्ड सेक्टर, और ये बिगर आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो है दैट इज़ कॉल्ड मेजर सेक्टर। ओके, विद दिस वी कंक्लूड दिस worksheet. Do send pictures to your teachers, write in comment section also. We'll meet in the discussion of next worksheet. Till then, take care. Bye bye.